First of all, there should be recitation of Holy Quran. Anyone from the participants, please, recitation. Yeah. काइंडली अगर कोई रेजोल्यूशन करना चाहता है तो अपना हैंड रेज करते हैं, मैं उसका माइक अलाउ कर दूंगी. जी. I think Mohammed Imran, Mohammed तैयब Zishan. नसीर आपका माइक अलाउड है अगर आप करना चाहते हैं. जी मैडम. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. कुल हुवल्लाहु अहद. अल्लाहु समद. लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. Jazakallah. Topic, yes. Okay. Now the topic of the presentation, I think, can all the participants shortly introduce themselves? मैम बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, फिर इस तरह हर एक का माइक जो है वो अनम्यूट करना पड़ता है बारी बारी. So it's not feasible. जी मैम, उनके 500 प्लस पार्टिसिपेंट्स होते हैं. Okay, fine. So, with the name of Allah, I'm going to start the presentation. The topic of the presentation is, please share. I'm sharing the PowerPoint. So, I'm sure everyone can view the slide. Please confirm the host. Madam. जी मैम, विजिबल है. विजिबल है मैम. Okay. So the topic of the presentation is pedagogical, andragogical, and pedagogical implications in teaching learning process. So this topic is related to the teaching learning techniques, skills, etc. Now, I hope everyone is familiar, at least pedagogy is very familiar term, but other two terms are rarely used in the everyday life in the teaching learning process. So in this presentation, following are the topics, those will be discussed. First one is defining pedagogy, andragogy, and pedagogy. Then second point, which will be included in the presentation, implications and application in teaching learning process, theoretical background and application of pedagogical, andragogical, and pedagogical techniques. And at the end, the challenges and the management issues related to these techniques will be included. Now, so first of all, we will see pedagogy. Now, pedagogy refers to the art and science of teaching children. Key features are teacher-centered approach, structured curriculum, learners are dependent, and teacher controls content, pace and assessment. So the focus is knowledge transmission, cognitive development also. So it means pedagogy basically
pedagogy, during pedagogy, use of pedagogy, this is simply the art and science of teaching children. So जो एवरीडे लाइफ में हमारे स्कूल्स में जो पढ़ाया जाता है, हम इनको इस आर्ट और साइंस को हम पेडागोजी कह सकते हैं. इसमें टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है. टीचर इज wholly solely responsible for the goals, content and methods primarily decided by the institutions and teachers. टीचर ही करिकुलम बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, मेथड्स यूज करते हैं. सो इसमें वो सारी अप्रोचेस, सारे मेथड्स जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच के अंडर आते हैं वो यूज किया जाते हैं. स्ट्रक्चर्ड करिकुलम होता है, मीन्स के करिकुलम फ्लेक्सिबल नहीं होता, पहले से डिसाइडेड होता है कि उसमें आपने क्या कुछ पढ़ाना है, उसमें क्या कंटेंट कवर करना है, कौन सी मेथडोलॉजी यूज करनी है, असेसमेंट सिस्टम कैसा होगा, गोल्स डिसाइडेड होते हैं. सो द स्ट्रक्चर्ड करिकुलम इज फॉलोड. लर्नर्स आर डिपेंडेंट. लर्नर्स डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंड करते हैं? टीचर्स पर. सारा जो स्ट्रक्चर्ड करिकुलम है और जो टीचर्स सेंटर्ड अप्रोच है, लर्नर्स उस पर डिपेंड करते हैं. लर्नर्स को जो सिखाया जाता है उन्होंने उसको पढ़ना है, सीखना है. असेसमेंट की जो टेक्निक्स हैं वो उन्होंने उसी टेक्निक्स के तहत उन्होंने चलना. Teacher controls content, pace and assessment. So teacher centered है, तो teacher is wholly solely responsible for everything. Content वो बनाएंगे, क्लास को किस पेस में पढ़ाना है, फिर असेसमेंट कैसे लेनी है वो सब टीचर के हाथ में है. ऑरल असेसमेंट करनी है, ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप करना है, ये सिर्फ सब्जेक्टिव ही करना है. सो टीचर इज रिस्पॉन्सिबल. Teacher is decision maker actually in this pedagogy under the heading of pedagogy. So assessment system. So इसमें हमारा जो रवायती ट्रेडिशनल जो सिस्टम है वो सारा इसी पर इसमें फॉल करता है. नॉलेज ट्रांसमिशन होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर फोकस होता है कि स्टूडेंट्स के पास नॉलेज आ जाए, वो जो कुछ सीखें उसको याद करके लिख सकें. यानी जो अगर हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी से सब लोग फेमिलियर होंगे, ब्लूम टेक्सोनोमी में जो सबसे पहला लोएस्ट लेवल होता है नॉलेज ट्रांसमिशन का, वो इसमें इस पेडागोजी में इसमें फोकस पॉइंट बना रहता है. यानी स्टूडेंट्स को जो भी पढ़ाया जाए वो उनको याद हो जाए, उनसे फिर एज इट इज वो उसको लिख सकें, जवाब लिख सकें. एट टाइम्स किताबों से एज इट इज सारा कुछ जो है इनकरेज किया जाता है स्टूडेंट्स को कि वो जो कुछ पढ़ाया गया है वो सारा कुछ वो उसमें से याद कर लें और फिर उसी को लिख दें. यानी इसमें एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि स्टूडेंट अपने से कुछ बहुत उसमें ऐड करें. फोकस नॉलेज ट्रांसमिशन है, नॉलेज ट्रांसफर हो जाए और उसको वो फिर रीस्टेट कर सके. कॉग्निटिव डेवलपमेंट इस सेंस में हो जाती है कि स्टूडेंट्स जो है वो क्लास के साथ साथ उनको नॉलेज उनका बढ़ता है और उनकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो जाता है. सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ पेडागोजी. So the proper definition of the then second is before going to next one, we will see pedagogy. Learners are dependent on teacher. Motivation is mostly external, grades or rewards. Motivation is very important part of the teaching learning process. Motivation के बारे में बहुत किताबों में एजुकेशन की, साइकोलॉजी की बातें लिखी होती हैं और मोटिवेशन डिफरेंट टाइप्स की होती है. एक्सटर्नल होती है, इंटरनल होती है. लेकिन जो पेडागोजी को जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें पेडागोजी में मोटिवेशन एक्सटर्नल होती है, इसमें इंटरनल पर फोकस नहीं किया जाता. जो मोटिवेशन की एजुकेशनल साइकोलॉजी की टर्म में जो स्पेसिफिक टर्म्स है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की टर्म्स यूज की जाती हैं.
So pedagogy is related to extrinsic motivation, और ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है इसमें ग्रेड्स और रिवॉर्ड्स पर फोकस किया जाता है। अगर हम जो स्कूल ऑफ थॉट्स की तरफ जाएं तो इसमें हमारे पास वो जो स्कूल ऑफ थॉट है वो फोकस करता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पर, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट पर। तो उसमें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ग्रेड्स और रिवॉर्ड, पनिशमेंट, बिहेवियरिस्ट थ्योरी जो है वो इसमें फॉल करती है। सो pedagogy is actually working. Pedagogy is the key characteristics of pedagogy actually falls in the behaviorist school of thought. लर्निंग इज सब्जेक्ट सेंटर्ड, यानी जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसी से लर्निंग हो रही है। टीचर अथॉरिटी और डिसीजन मेकर है। असेसमेंट इज स्टैंडर्डाइज एंड समेटिव। स्टैंडर्डाइज के मतलब जो भी पेपर बन गए, जैसे हमारे बोर्ड के पेपर्स होते हैं, तो ये हमारे स्टैंडर्डाइज एग्जाम्स होते हैं, सेंट्रलाइज्ड होते हैं, एक खास क्राइटेरिया पर बनाए गए होते हैं। और समेटिव एट द एंड ऑफ द सेशंस होते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट पर कम जोर होता है। लाइक थोड़ी मॉडर्न टीचिंग में फॉर्मेटिव पर क्विजेस, असाइनमेंट्स, उनकी ग्रेडिंग पर तवज्जो दी जाती है। लेकिन पेडागोजी में लर्नर्स आर डिपेंडेंट ऑन टीचर, एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है एक्सट्रिंसिक, और सब्जेक्ट सेंटर टीचिंग होती है, टीचर अथॉरिटी होती है, और असेसमेंट इज स्टैंडर्डाइज एंड समेटिव। And the examples of the pedagogy are primary and secondary schooling, lecture-based classroom. So these are the characteristics of the key characteristics of pedagogy. So मेरा ख्याल है कि यहाँ तक पेडागोजी को अगर हम देखें तो हमें लगता है कि ये हमारा जो ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है, जिसमें अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है, वो इस तरीके से इस पर बेस करता है। और ये लेक्चर बेस्ड क्लासरूम्स होते हैं इसमें। और इसमें पेडागोजी में हम लोग फोकस करते हैं टीचर के रोल पर। नेक्स्ट जो आर्ट ऑफ साइंस ऑफ टीचिंग है, एंड्रोगॉजी। This is related to, now basic difference is about, now the audience is changed in andragogy. Andragogy में adult education से related हो जाती है, यानी इसमें टीचिंग लर्निंग हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल टीचिंग नहीं है। इसका ताल्लुक जो है वो अडल्ट एजुकेशन से, लाइक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, लाइफ लॉन्ग। जैसे आप लोग अब इस वक्त जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास, ये पार्टिसिपेंट्स अडल्ट हैं। बहुत से लोगों को ये टर्मिनोलॉजी, ये चीजें ऑलरेडी पता होती हैं, लेकिन इन चीजों को हम बार बार देखते हैं, सीखते हैं इससे। सो एंड्रोगॉजी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग adults to learn, how to help adults learn according to their needs, or to motivate adults to learn to use their experiences to achieve new learning experiences. Adult education or andragogy is different from children's education pedagogy. जाहिर बात है, जब अडल्ट को हम एजुकेट करते हैं, उनको उनकी जो बेसिक एजुकेशन है, सिलेबस वगैरह, करिकुलम एज सच नहीं होता। जो ट्रेनिंग्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं यूनिवर्सिटीज में, स्कूलों में, ये सब कुछ जो है ये एंड्रोगॉजी ही होती है। इसमें अडल्ट लोग, टीचर्स, हेड मिस्ट्रेसेस, हेड मास्टर्स या प्रिंसिपल्स जो हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर उनसे डिस्कशंस भी होती हैं, और कुछ मॉडर्न टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स भी डिस्कस की जाती हैं इसमें। सो एंड्रोगॉजी जो है वो बच्चों की पेडागॉजी से इस सेंस में फर्क है। इसके जब हम करेक्टरिस्टिक्स देखें या की फीचर्स देखें, ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। दिस इज नॉट अबाउट टीचर सेंटर्ड।
This is learner-centered approach. Learners are self-directed. Learning is problem-centered. Learners bring prior experiences. Focus is practical application, lifelong learning. इसमें ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि लर्निंग जो है उसको उसको लर्नर सेंटर्ड बनाया जाए, सेल्फ डायरेक्टेड बनाया जाए, प्रॉब्लम सेंटर्ड बनाया जाए, या उनकी प्रायर एक्सपीरियंस जो पहले का उनके पास ऑलरेडी दे हैव द एक्सपीरियंस, दे कैन एक्सटेंड their knowledge based on their prior experiences and prior knowledge. Practical application, इसका मकसद भी, एंड्रोगॉजी का मकसद ये नहीं होता कि किसी को कोई डिग्री देनी है, कोई सर्टिफिकेट मिलते हैं, लेकिन कोई बेसिक एजुकेशन नहीं होती, जैसे मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, ये वाली डिग्रीज नहीं होती है इसमें, बल्कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। कोई टेक्निक्स नहीं, कोई जैसे आजकल डिजिटल नॉलेज है या लैंग्वेज स्किल्स है, वो सब इस एंड्रोगॉजी में आ जाती हैं, वो चीजें सिखाई जाती हैं। adults need to know why they learn. So एंड्रोगॉजी की जो assumptions अगर हम देखें ना, तो जो क्योंकि ये अडल्ट टीचिंग से रिलेटेड है, तो अडल्ट्स मस्ट नो कि वो क्यों ये सब कुछ सीखना चाहते हैं। जैसे अब आपकी ये ट्रेनिंग जो भी हो रही है, इसमें आप लोगों को ये देखना है कि आपको कोई नई चीजों को सीखना है, उसका मकसद क्या है। Adults are self-directed. Prior experience is a learning resource. यानी आपका जो बेसिक आपका रिसोर्स है जिससे आप सीख रहे हैं, वो प्रायर एक्सपीरियंस है आपका, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आपके पास जो पिछला आपका 5, 10, 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो सारे एक्सपीरियंस आपकी बेस है इस नॉलेज की। उन चीजों को लेकर उनको डिफ्रेंशिएट करना या उसको एक्सटेंड करना, उसको स्ट्रक्चर करना जो है, वो आपका प्रायर एक्सपीरियंस है। रेडीनेस टू लर्न इज रोल रिलेटेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेडीनेस, सीखने के लिए आपकी विलिंगनेस या रेडीनेस जो है, दैट इज रोल रिलेटेड। ओरिएंटेशन इज टास्क और प्रॉब्लम सेंटर्ड। मोटिवेशन इज इंटरनल। जबकि पहले जो पेडागॉजी थी उसमें मोटिवेशन एक्सटर्नल थी, रिवॉर्ड पनिशमेंट से बच्चे सीखते हैं, लेकिन जब अडल्ट्स होते हैं उनमें खुद से एक शौक होता है कि हम कुछ अपने अपने आप को कुछ इम्प्रूव कर ले, अपने कैरियर में कुछ ट्रेनिंग्स करके अपने आप को ग्रूम कर ले। सो द मोटिवेशन इज इंटरनल और इंट्रिंसिक। जो टर्मिनोलॉजी मोटिवेशन के लिए टिपिकल एजुकेशनल साइकोलॉजी में यूज होती है, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। So motivation is intrinsic in this scenario. I hope andragogic assumptions are clear to everyone. Next is third term, that is pedagogy. So first term pedagogy was about teacher-centered teaching learning style, structured curriculum. Then second was about andragogy, where that was related to adults learning. Now third term, which is part of the presentation, is pedagogy. Pedagogy refers to self-determined learning where learners take full responsibility for their learning. This is gradually we are going to higher learning processes. Pedagogy से हम लोग आए एंड्रोगॉजी पर, जो कि अडल्ट्स की लर्निंग है, और अब हम जा रहे हैं पेडागॉजी की तरफ, जो सेल्फ डिटरमिन्ड लर्निंग है। This is very interesting that it is self-determined learning, where learners take full responsibility for their learning. It is an educational approach where learners take full control of their learning, deciding what, how, and when they learn, moving beyond traditional teacher-led pedagogy or even self-directed
andragogy, models to foster deep capability, creativity, and lifelong learning by developing self-efficacy and critical reflection. इसकी मिसाल यूं ली जा सकती है ह्यूटागोजी की कि किसी को खुद से लैंग्वेज स्किल्स सीखने का शौक है। अगर हम तीनों चीजों को कंपेयर करें, लाइक मैट्रिक, एफएससी, बीएससी तक लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज सीख ली, मुख्तलिफ पेपर्स दे दिए, मार्क्स आ गए, सर्टिफिकेट्स मिल गए, वो तो थी आपकी पेडागोजी। फिर उसके बाद एंड्रोगोजी, जब थोड़ा सा बड़े हुए, जॉब में गए, तो हमें ख्याल आया कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी वीक है, तो हमने अडल्ट कोई क्लास ज्वाइन कर ली, वो एंड्रोगोजी होगी आपकी। आपने कुछ अपनी लैंग्वेज स्किल्स को बेहतर कर लिया, सो वो दैट इज अडल्ट लर्निंग। वो आपने अपनी जो पहले से टेंसेस सीखे हुए थे, आपने मुख्तलिफ मज़ामीन सीखे हुए थे, वो लेटर्स लिखना, अब आप ईमेल्स लिखना सीख के, आपने बातचीत के लिए अपनी स्पोकन इंग्लिश को बेहतर करने के लिए कोई अडल्ट लर्निंग क्लासेस ज्वाइन कर ली, वो आपकी हो गई एंड्रोगोजी। लेकिन अभी भी आपको लगता है कि आप कुछ कुछ अपनी स्पोकन इंग्लिश को या रिसर्च के हवाले से आप कुछ अपनी रिसर्च स्किल्स को या डिजिटल लैंग्वेज को अच्छा करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज खुद से ज्वाइन कर लेते हैं, ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, आप थोड़े अरसे बाद फिर किसी को कहते हैं आप जरा मेरा थोड़ा सा टेस्ट कोई ले लें, तो आप वो सब कुछ जो कि हाईली स्ट्रक्चर्ड नहीं है, वो बिल्कुल भी, वो सेल्फ डिटरमिन्ड लर्निंग है आपकी। वो आपने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छा करना है, सीखना है। वो एजुकेशनल अप्रोच वेयर लर्नर्स टेक फुल कंट्रोल ऑफ देयर लर्निंग, यानी उसमें आपने खुद ही सोच लिया कि मैंने अच्छा करना है, आपने अपने किसी लोकल बंदे से किया, फिर ऑनलाइन किसी और से कर लिया, फिर आपने कोई किसी के साथ डिस्कशन का टाइम डिसाइड कर लिया, कोई इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सपर्ट है उसके साथ आपने इंग्लिश में कोई रोज के टाइम फिक्स कर लिया कि आपने कोई 15-20 मिनट आपने इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी है, स्पोकन इंग्लिश की, तो ये आपकी ह्यूटागोजी हो जाएगी। ये इट्स इट्स क्वाइट क्वाइट सेल्फ डिटरमिन्ड लर्निंग। आप लोग बिल्कुल अपने आप को खुद से डिटरमिन्ड है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, आपने खुद अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, आप अपना करिकुलम खुद ही बना रहे हैं, आप ना तो पेडागोजी पर डिपेंड कर रहे हैं ना एंड्रागोजी पर कर रहे हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है ना, अपनी क्रिटिकल रिफ्लेक्शन खुद ही दूसरों से डिस्कस करके कर रहे हैं। I hope this example makes clear the difference between these three terminologies: pedagogy, andragogy and heutagogy. So heutagogy जो है, actually अगर हम different school of thoughts को देखें, heutagogy जो है constructivist, आगे स्लाइड्स में आएगा, constructivist theorist जो है वो इसको सपोर्ट करते हैं। So this pedagogy is characterized by several key elements. Self-directed learning. I hope I am not too fast for this presentation. May I know the duration of the presentation? कितना time है इसका मैडम? मैम 12 तक होती है, फिर 12 से 12:15 ब्रेक होती है, लेकिन ब्रेक में भी क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, सही है। सो हमारे पास अभी 20 मिनट्स हैं, 12। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है, पहली टर्म है इसकी ह्यूटागोजी की। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल से भी बताया कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में ह्यूटागोजी encourages learners to take ownership of their education. They decide what, how and when to learn, allowing for a personalized learning experience. यानी खुद ही डिसाइड करना है कि क्या सीखना है, कैसे सीखना है और कब सीखना है। लर्नर ऑटोनॉमी, लर्नर्स खुद इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल
मुकम्मल तौर पर autonomy is related to independence. So it means they are responsible for setting their own objectives and evaluating their progress. Continual reflection. Reflection plays a vital role in heutagogy. Learners constantly assess their learning experiences, adjusting their strategies and goals accordingly. यानी रिफ्लेक्शन जब तक ना हो, यानी जो सीखा है आप किसी से, जैसे मैं इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश की एग्जांपल देती आ रही हूँ तीनों के लिए, तो रिफ्लेक्शन की टर्म में ये है कि आप बोल कर देखें ना, आप देखें किसी कोई इंग्लिश एक्सपर्ट थोड़ा सा हो जिसके साथ आपका कंफर्ट जोन हो, उससे बोलकर देखें कि either you have learned or not. So flexible learning environment हो, it's not bound by traditional classroom settings. Learning can occur in various contexts, including online platforms, informal settings, and through various resources. As I am giving example of spoken English, आप online किसी से बात कर लें या इनफॉर्मल सेटिंग्स में उससे कहें कि बस 10-15 मिनट मुझसे किसी टॉपिक पर डिस्कशन करें इंग्लिश में और मुझे फीडबैक दें कि आपने 1 महीना पहले जब बात की थी तो कैसी की। सो ये आपकी की एलिमेंट्स हैं ह्यूटागॉजी के। If we compare pedagogy, andragogy, and heutagogy in different context, this is very comparative, comprehensive comparative view overview of all these three terminologies. Those are used in teaching learning process. Learner's role is dependent in pedagogy. In andragogy, it's self-directed, but heutagogy is self-determined. Teacher's role is authority in pedagogy, facilitator in andragogy, and mentor or coach in heutagogy. Curriculum is fixed in pedagogy, but flexible in andragogy, and heutagogy is negotiated, quite flexible. Motivation is external in pedagogy, but internal in andragogy, and intrinsic is heutagogy. यानी आप देखिए heutagogy highest level of learning है, andragogy जो है वो comparatively दरमियान में आता है, जबकि pedagogy quite structured है जिसमें teacher centered है. Andragogy student centered और heutagogy self determined highest level है learning का. Teaching strategies must align with learner's age, learning context, learning goals, technological access. Effective teaching often blends all three approaches. हमारे यहाँ normally अब काफी आहिस्ता आहिस्ता gradually alignment gradually changes आ रही हैं. Purely टीचर सेंटर्ड से हम ग्रेजुअली स्टूडेंट सेंटर्ड की तरफ जा रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड करिकुलम से जिसमें पहले सिर्फ नॉलेज को हम असेस करते थे, अब हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी की बातें होती हैं, असेसमेंट में, पेपर्स में ऑब्जेक्टिव टाइप या एक्टिविटी बेस्ड कामों पर जोर दिया जाता है स्कूल्स में। तो हमने ये देखना है कि लर्नर्स, सबसे पहले लर्नर्स जो भी इनमें से आप पेडागोजी ले, एंड्रोगोजी ले या ह्यूटागोजिकल टेक्निक्स ले, ये सब स्ट्रेटजीज जो है इनको अप्लाई करने के लिए आपको इन सारे सिनेरियोज का ख्याल रखना पड़ता है। ये आपकी इम्प्लीकेशंस हैं और ये एजुकेशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन तीनों स्ट्रेटजीज की इम्प्लीकेशंस हैं। Pedagogical applications in teaching, lectures and demonstrations होती हैं, drill and practice, textbook based instructions, teachers designed assessments होती हैं इसमें, और this is suitable for school education introductory courses के लिए. This is about pedagogical application in teaching. But for andragogical application in teaching, group discussions, case studies, problem based learning, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स के लिए भी ये सूटेबल है। इन यूनिवर्सिटीज में ग्रुप डिस्कशन, केस स्टडीज, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, ये चीजें अप्लाई की जाती हैं। जबकि अगर हम देखें हाईएस्ट लेवल देखें, हमारा
जो ह्यूटागोजिकल एप्लीकेशंस है उसमें जो पढ़ाई की जाती है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है। जैसे यूजुअली हायर एजुकेशन में फाइनल सेमेस्टर में कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है स्टूडेंट्स को, या थीसिस दे रिसर्च वर्क दे दिया जाता है, एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, सेल्फ डिजाइन असेसमेंट दी जाती है, डिजिटल पोर्टफोलियोज। सो दिस इज सुटेबल फॉर हायर एजुकेशन एंड ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग। जो ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की होती है, आपने देखा होगा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वो सेल्फ डिजाइन असेसमेंट्स पोर्टफोलियोज वगैरह पर बेस करता है। इसके अलावा भी ये चीजें अप्लाई हो सकती हैं। ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है। एज आई वाज टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, जो पेडागोजी है, this table actually provides clear comparison between three terms and belonging to different school of thoughts. Pedagogy, behaviorism, Skinner और Pavlov और Piaget cognitivist theorist की theories पर बेस करता है, जबकि एंड्रोगोजी मेलकम नॉल्स और ह्यूमनिज्म, मैस्लो रॉजर्स और एक्सपीरियंशियल लर्निंग कॉल की थ्योरीज पर बेस करता है। जबकि ह्यूटागोजी कॉन्सेप्ट जो है टीचिंग लर्निंग से, वो कंस्ट्रक्टिविज्म, हेज एंड क्योन, कनेक्टिविज्म और ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग पर डिपेंड करता है। और इनके साथ साथ इन तीनों कॉन्सेप्ट का जो एम्फेसिस है डिफरेंट है। पेडागोजी का जो फोकस या एम्फेसिस है वो नॉलेज ट्रांसमिशन पर है, रीइंफोर्समेंट एंड प्रैक्टिस पर है। यानी हम जो स्कूल्स में करवाते हैं ज्यादा बच्चों को नॉलेज की ट्रांसफॉर्मेशन, उनको ड्रिल से सिखाते हैं, जबकि एंड्रोगोजी सेल्फ डायरेक्शन एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग पर है। ह्यूटागोजी जो कि हाईएस्ट लेवल है सिखाने का, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पर बेस करता है, अडेप्टेबिलिटी और रिफ्लेक्शन पर इसका फोकस होता है, जोर होता है कि लोग चीजों को अडेप्ट कर लें। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब है जो कुछ सीखे फिर उसको अप्लाई कर सके। ये तीनों के कंपैरिजन और एम्फेसिस जो है ये उसकी बात होगी। Now next we come to the application of integrated approaches। यह हमने जो इंटीग्रेटेड अप्रोचेस मीन हम इन तीनों को इकट्ठा करके हम इनकी मॉडर्न क्लासरूम जो है उसमें इन तीनों की क्या कैसे अप्लाई इसको कर सकते हैं। मॉडर्न क्लासरूम्स रिक्वायर पेडागोजी फॉर फाउंडेशनल नॉलेज, एंथ्रोगोजी फॉर स्किल डेवलपमेंट and heutagogy for innovation and lifelong learning. Although all these three terms are not possible to techniques are not possible to apply for all the levels, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं कि हम पेडागोजी को फाउंडेशनल नॉलेज, बेसिक नॉलेज सिखाने पर लगाएं, फिर एंड्रोगोजी जो है वो स्किल डेवलपमेंट पर लगा दें, ह्यूटागोजी जो है वो हम बच्चों में इनोवेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग डेवलप करने पर लगा दें। एग्जाम्पल्स इसकी है, टीचर एक्सप्लेन्स कॉन्सेप्ट थ्रू पेडागोजी, स्टूडेंट्स सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स थ्रू एंड्रोगोजी, स्टूडेंट्स डिजाइन प्रोजेक्ट्स थ्रू ह्यूटागोजी। इसकी अगर मैं एग्जाम्पल प्रैक्टिकल क्लासरूम से दूं तो अगर हम मैथमेटिक्स को ले लें, बच्चों को एरिया पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट अगर हमने सिखाना है, हम उनको रकबा और जो पेरीमीटर जो भी है वो सिखाना है आपने, आप उनको उसका कॉन्सेप्ट फाउंडेशन नॉलेज दे दी कि एरिया से मुराद ये है कि क्या कैसे एरिया कवर होता है। आप कोई क्लासरूम की ही एग्जांपल दे दें कि इसका एरिया हमने कैसे मालूम करना है, फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला भी बता दें। एंड्रागोजी के थ्रू कोई स्किल उसमें डेवलप करें, उनको उनको कुछ छोटी सी टेक्निक बता दें, स्किल बता दें कि अगर आपके पास कोई कोई रिबन है, उससे आप क्लासरूम की लंबाई चौड़ाई को नाप कर मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। या आप क्लासरूम का बोर्ड है उसको किसी रिबन से मैयर करके बता दें कि इसका भी एरिया मालूम किया जा सकता है। ह्यूटागोजी जो है इनोवेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, इसमें आप उनको ये कोई
प्रोजेक्ट दे सकते हैं, कोई असाइनमेंट दे सकते हैं कि आप लोग ना थोड़ा सा सोच के आए, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाए, कोई इस तरह से कोई फ्रेम बना ले, कोई अपने घर से कोई गत्ते के डिब्बे से कुछ इस तरह का बना ले जिसका एरिया मालूम कर ले। बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, बिस्किट के डिब्बे, कोई कॉपी का कवर, कोई डिब्बा जिसका एरिया मालूम किया जा सकता है। सो हम लोग छोटे लेवल पर भी ये सारी चीजें जो है अप्लाई करके हम इंटीग्रेटेड अप्रोचेस डेवलप कर सकते हैं इन तीनों टेक्निक्स को यूज करके। पैसिव लर्निंग चैलेंजेस क्या है हमें पेडागोजिकल अप्रोच में? पैसिव लर्निंग, लिमिटेड क्रिटिकल थिंकिंग, लर्नर डिपेंडेंसी। मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में इंटरेक्टिव टीचिंग, यूज ऑफ क्वेश्चनिंग टेक्निक्स काम आ सकती हैं। हमारी लर्निंग, क्योंकि हमारा अनफॉर्चुनेटली जो हमारा सिस्टम ट्रेडिशनल रहा है उसमें लर्नर हमेशा पैसिव रहा है, और उनकी पैसिव लर्निंग है वो जो एंड्रोगॉजिकल ह्यूटॉजिकल की तरफ गया ही नहीं है, उसकी लिमिटेड सी क्रिटिकल थिंकिंग है। उसको सोचने को भी देंगे ना असाइनमेंट तो वो नहीं कर पाते। लर्नर डिपेंडेंसी, लर्नर जो है उस वो किसी ना किसी पर जरूर डिपेंड करता है, वो कहेगा मुझे बता दे। अगर एक को आइडिया दे दिया वो कोशिश करेंगे वही वाला आइडिया ना इधर से उधर कॉपी पेस्ट करेंगे। तो ये चीजें हमारे चैलेंजेस हैं, लेकिन हम इनको इंटरेक्टिव बनाकर क्वेश्चनिंग टेक्निक्स इनकरेजमेंट से हम इनको डेवलप कर सकते हैं, हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम एंड्रोगॉजिकल अप्रोच देखें, लर्नर रेजिस्टेंस है, अनइक्वल पार्टिसिपेशन, टाइम मैनेजमेंट इश्यूज है। जाहिर है टाइम लिमिटेड होता है, लेकिन इसमें भी हम क्लियर ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड फैसिलिटेशन और मोटिवेशन टेक्निक्स यूज करके इसको हम एंड्रोगॉजिकल अप्रोच को यूज कर सकते हैं। और लास्ट, द चैलेंजेस ह्यूटोगॉजिकल अप्रोच में बहुत ज्यादा चैलेंजेस होंगे क्योंकि ये बहुत हायर लेवल है। लैक ऑफ लर्नर रेडीनेस, असेसमेंट डिफिकल्टीज, डिजिटल डिवाइड। सो इसमें लर्नर की रेडीनेस ही नहीं होती जब तक उसको कोई मोटिवेशन नहीं देंगे, असेसमेंट मुश्किल हो जाती है। और लेकिन इन सब को कैसे हम कर सकते हैं? स्कैफोल्डिंग दें, पहले उनको सपोर्ट दें। स्कैफोल्डिंग बेसिकली वो टर्मिनोलॉजी है जो कि जिसमें पहले थोड़ी सी सपोर्ट दें, फिर सपोर्ट हटा लें, उनको इंडिपेंडेंट काम करने दें। दिस इज द टर्मिनोलॉजी यूज्ड बाय वेरी famous cognitivist Piaget and Jean Piaget and Vygotsky। उन्होंने ये टर्म दी कि स्टूडेंट्स को पहले सपोर्ट दें फिर सपोर्ट हटा लें, जैसे हम छतें डालते हैं ना उनकी सपोर्ट दी होती है, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। कंटिन्यूस फीडबैक दें और ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल्स इंट्रोड्यूस करें। ब्लेंडेड का मतलब कुछ मिला जुला कर, कुछ पहले वाला फिर थोड़ी सपोर्ट दें, फिर आसान कर दें, कुछ क्रिटिकल चीज डेवलप कर लें। सो हमने नया सिस्टम जब इंट्रोड्यूस करना है हमें पुराने की बेस पर ही चलना है। सो दीज आर द मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर द ह्यूटोगॉजिकल। सो पेडागॉजी में हमारे पास जो है इंस्ट्रक्शन, अगर हम देखें इंस्ट्रक्टर अथॉरिटी है, दिस इज द रोल ऑफ द टीचर। एंड्रोगॉजी, टीचर इज अ फैसिलिटेटर। इन ह्यूटोगॉजी टीचर का रोल मेंटर एंड लर्निंग पार्टनर है। उसने टीचर ने स्टूडेंट के साथ बैठ के सीखना। टीचर मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव। सो हमारे टीचर्स को इंस्ट्रक्टर और अथॉरिटेटिव से फैसिलिटेटर और लर्निंग पार्टनर बनना है। पेडागॉजी इज अ स्टूडेंट इज अ पैसिव रिसीवर, एक्टिव पार्टिसिपेंट बनेगा। एंट्रोगॉजी में या हेटोगॉजिकल में स्टूडेंट की ऑटोनॉमी होगी और उसको सेल्फ डायरेक्टेड क्रिएटर ऑफ नॉलेज होगा। सो this is the conclusion that pedagogy, andragogy, heterogogy represent a continuum of learning autonomy. So ये हमारी एक कंटिन्यूस एक लाइन है लर्निंग ऑटोनॉमी की, जिसको हमने पेडागॉजी से शुरू करके एंड्रागॉजी के थ्रू हेटोगॉजी तक जाना है।
It is pedagogy is effective for foundational knowledge and structured learning, especially with novice learner. जो नए लोग हैं उनको हमने pedagogy से शुरू करना है. Andragogy supports adult motivation, experiential learning and problem solving. Andragogy adult motivation के लिए learning के लिए है. Hudagogy prepares learners for uncertainty, complexity and lifelong learning through capability development. Contemporary higher education increasingly integrates blended pedagogical, andragogical, hudagogical models to meet diverse learning needs. जो मॉडर्न अब जो मौजूदा हायर एजुकेशन है वो तो कोशिश कर रही है, लाइक हम लोग यूनिवर्सिटीज में कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स को एक्टिविटी बेस्ड काम भी करवाते हैं, असाइनमेंट्स भी देते हैं, पेडागोजिकल पर काफी जोर है, और एंड्रागोजी जो अडल्ट मोटिवेशन है उसको भी टच करने की कोशिश करते हैं. लेकिन बेसिक जो पेडागोजी है एक्चुअली इसका आगाज बेसिक से होता है और ये हमने शुरू से ही लेकर चलना है, तभी हमारे स्टूडेंट्स को इसकी आदत होगी. Thank you very much. If you have any question, you are welcome to ask questions. काइंडली किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो हैंड रेज कर दें. हाफिज इरशाद इकबाल, आपका माइक ऑन है. जी हाफिज इरशाद साहब. एहतशाम जफर, आपका माइक ऑन है. आवाज नहीं आ रही. सलीमुल्लाह साकिब, आपका माइक ऑन है. अवैस अहमद, आपका माइक ऑन है. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. जी एहतशाम जफर साहब. अस्सलाम वालेकुम मैम. थैंक यू वेरी मच. सलीमुल्लाह साकिब. अच्छा जी 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 सलीमुल्लाह साकिब, यू आर वेलकम. बल्कि हम हायर एजुकेशन में सारे लोग काम कर रहे हैं, तो हम बच्चा जो पढ़ के आया है उसने जी कोई पेडागोजिकल से भी काम नहीं किया हुआ, और वो एक तो अगर हम उसको सिस्टम को चेंज करते हैं हायर एजुकेशन में, तो उसके जी. लिए क्या पॉसिबिलिटीज है, या आप क्या उस हवाले से कहते हैं कि वो पहले एक अथॉरिटेटिव सिलसिले में पढ़ के आया है, या टीचर ही पूरा अथॉरिटेटिव था, और जी. हायर एजुकेशन में उसको किस तरह कैसे चेंज किया जा सकता है? जी आई 100% एग्री विद यू, क्योंकि हम खुद यूनिवर्सिटीज़ में हायर एजुकेशन में हैं, हमें भी ये इशू इसका फेस करना पड़ता है. लेकिन एनी हाउ अभी हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में हमें ये स्ट्रगल तो करनी है, और हमें थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा कि आप किस किस फॉरम पर आप उनको पेडागोजी से एंड्रागोजी पर लाना है. पेडागोजी से तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं, पेडागोजी में तो स्ट्रक्चर्ड करिकुलम पढ़कर आए होते हैं. तो एंड्रागोजी में आप थोड़ा सा ये एफर्ट कर सकते हैं कि कभी कभार उनको कोई असाइनमेंट कुछ इस तरह की दे दें एंड्रागोजी में, जिसमें उनका कोई लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जो है वो रिफ्लेक्ट करे. लाइक कभी थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाए, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग, कुछ केस स्टडी का कोई काम दे दे, तो इस तरह से ये हो सकता है. और डिजिटल डिजिटल लर्निंग के थ्रू भी ये चीजें हो सकती हैं, जिसमें स्टूडेंट्स की अपनी लर्निंग जो है रिफ्लेक्ट करे, सेल्फ डायरेक्टेड कोई इस तरह का हो जाए. मतलब इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द टॉपिक्स, लेकिन ये पॉसिबल है कि एक सेमेस्टर में या एक महीने में कोई एक चीज ऐसी दे दे और कोशिश करें कि उसको ग्रेड कर दे, फिर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेते हैं. डिफिकल्ट है, लेकिन अगर टीचर जी मैम. डिटरमिन्ड हो तो वो कर सकता है प्लान.
जी मैम, ऐसे ही है कि बीएस प्रोग्राम में खास तौर पे जहाँ पे भी बीएस होते हैं, जैसा जी हमारे जी भी ग्रेजुएट कॉलेजेस में, तो वहाँ जी पे जी ड्रॉप रेशो या लो जीपीए जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे कम देखा जाता है, क्योंकि बच्चा उस चीज़ के लिए या उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहा होता। तो जी ये प्रॉब्लम ज़ाहिर है हमें फेस करना पड़ता है। हाँ थैंक यू जी, वेरी मच मैम। यू आर वेलकम। अवैस अहमद, आपका माइक ऑन है। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी अवैस साहब। जी मैम, मेरा क्वेश्चन था कि somebody is struggling with self डायरेक्शन, हम इसको कैसे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं? जो स्लो लर्नर हैं, डेड लर्नर हैं, तो जी इसमें हम कैसे डील करते हैं ऐसे केसेस को? सेल्फ डायरेक्टेड की बात कर रहे हैं आप? जी जी, somebody who lacks self direction or he is not जी motivated for learning. हाँ जी, हमारे यहाँ जो सिस्टम स्कूल्स का होता है या कॉलेज का होता है, नॉर्मली जो सिस्टम है, उसमें ये टर्म्स स्टूडेंट्स और टीचर्स बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं होते। उसमें गुंजाइश ही नहीं होती। सेल्फ डायरेक्शन का तो ये मतलब है, आप उसको कोई रिफ्लेक्टिव वर्क दे दें, कोई काम ऐसा दे दें जिसमें उसकी सेल्फ डायरेक्शन हो जाए कि आप आपकी फ्यूचर के हिसाब से आपकी क्या प्लानिंग है। आप अपनी इंटरेस्ट का कोई टॉपिक लेकर उसके ऊपर कोई कोई आप कोई ऐसे या कोई असाइनमेंट या कोई प्रेजेंटेशन बना लें। आप अपनी अपनी इंटरेस्ट से रिलेटेड, या आप इंस्पायर्ड हैं किसी पर्सनालिटी से अपनी लाइफ में, उसके ऊपर कोई आप प्रेजेंटेशन दें, सबको कोई इस तरह का काम दे दें जिसमें उसकी अपनी इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व हो जाए। वो उसकी सेल्फ डायरेक्टेड, उसका लर्नर का सेल्फ डायरेक्टेड प्रोजेक्ट होगा, उसमें वो फिर इंटरेस्ट लेगा। सेल्फ लर्नर की अपनी इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी। जी, थैंक यू। जी, एनीवन एल्स? डॉक्टर हाफिज अरशद अस्सलाम वालेकुम। इकबाल, आपका माइक ऑन है। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम मैं तैयब नसीर बोल रहा हूँ। जी 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 तैयब साहब। जी मैडम, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अभी तो चले हम गवर्नमेंट सेक्टर में फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, हमारे लिए तो इतना गवर्नमेंट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन जी अगर आप जी प्राइवेट सेक्टर के एस्पेक्ट से देखें, प्राइवेट कॉलेज में कोई पढ़ा रहा है या अगर इवनिंग में कोचिंग क्लासेस कोई ले रहा है, तो उसमें जी मैडम जी जहाँ पर एक टीचर की अवेलुएशन का भी कॉन्सेप्ट है और बच्चे की हम्म। भी ये डिमांड है कि स्पून फीडिंग हो जाए, जिसको मेरा ख्याल है पेडागोजी स्किल्स कहेंगे हम। तो वहां पर जी जी मैडम एंड्रोगोजी और उसके आगे वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना वो तो बड़ा टफ होगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रही है, स्टूडेंट्स काम नहीं करना चाह रहा, तो वो तो जी होता है जी भाई, स्टूडेंट राजी रहना चाहिए जी, कोई मसला नहीं होना चाहिए जी, टीचर की एवेलुएशन भी होगी। तो टीचर के तो सर पे हम्म। तलवार लटकी होती है कि यार मैंने कोई कोई इनको कुछ सिखाने का कहा, तो वो तो जाहिर बात है थोड़ा सा टफ टाइम बच्चों को मिलेगा। लर्निंग प्रोसेस हमेशा पेनफुल होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर में आप ये स्किल्स कैसे अप्लाई करेंगे, मुझे ये नहीं समझ आ रही। वो तो हो सकता है आपके अगेंस्ट चला जाए, फिर हम क्या करेंगे वहां पे? थैंक यू। वेलकम। वैसे मैं तैयब साहब आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। मुझे ऐसे लगता है कि जी जी प्राइवेट सेक्टर शायद इन पर ज्यादा फोकस करता है, इन चीजों पर। प्राइवेट सेक्टर में आप देखें, आप इंटर के बाद जो हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इंटर तक तो काफी स्ट्रक्चर्ड हमारा सिस्टम है, लेकिन उसमें भी जी थोड़ी सी जी गुंजाइश होती है। लेकिन उसके बाद तो प्राइवेट सेक्टर अब स्किल डेवलपमेंट का दौर है और हर जगह बड़ी बड़ी जोर है इस पर। प्राइवेट सेक्टर में हर जगह ये कोशिश की जाती है कि स्टूडेंट्स की स्किल, आप देखिए प्राइवेट सेक्टर में, आप तो गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में एक आम स्कूल में भी कोई टीचर पढ़ाने जाए मास्टर्स करके, एमफिल करके, वो वो माँ बाप भी देखते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी देखते हैं कि उन्होंने कैसा पढ़ाया है, क्या वो इंग्लिश में पढ़ा रही है, क्या वो एक्टिविटी करा रही है।
मेरी अपनी एक एमफिल स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती है, वो कहती है हमारे यहाँ जो हेड है वो इस बात को बड़ा वेटेज देती है कि आप लोग एक्टिविटीज करा रहे हैं क्लासेस में। तो ये तो गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट में तो बहुत ज्यादा जोर है स्किल डेवलपमेंट का। तो वहां पर ये चीजें किसी ना किसी तौर पर टीचर्स को कहा जाता है कि यूट्यूब पर जाएं आप, मुख्तलिफ साइंस मैथ्स सोशल स्टडीज की भी एक्टिविटीज प्लान करें और इन सबको करें, बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ स्किल डेवलपमेंट। बच्चा ग्रेजुएट करके मार्केट में निकलेगा, सिर्फ वही सरवाइव करेगा जिसको स्किल्स आती होंगी। उसको प्रेजेंटेशन स्किल्स आनी चाहिए, उसको अपने आप को बोल कर बताना चाहिए या काम करके सिखाना। तो ये बात आपकी अपनी जगह ठीक है कि टीचर को मार्क्स ओरिएंटेड काम भी करना है, लेकिन अगर टीचर थोड़ा सा इन चीजों को से अवेयर हो जाए तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स भी इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाते हैं। जब आप थोड़ी सी स्किल डेवलपमेंट भी साथ साथ कर लें, मार्क्स तो जरूरी है उनके लिए, लेकिन स्किल डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया। वेलकम। जी, एनीवन डॉक्टर एल्स? तबस्सुम जी जी। हुसैन, आपका माइक ऑन है। डॉक्टर तबस्सुम, आपका माइक ऑन है। सजाद अली, आपका माइक ऑन है। सजाद अली, आपका माइक ऑन है। डॉक्टर मोहम्मद अहमद, आपका माइक ऑन है। डॉक्टर मोहम्मद अहमद, आपका माइक ऑन है। डॉक्टर हाफिज अरशद इकबाल, आपका माइक ऑन है। और किसी ने क्वेश्चंस पूछने हैं तो काइंडली हैंड रेज करें। डॉक्टर मोहम्मद अहमद, आपका माइक ऑन है। आप काइंडली अनम्यूट करें अपनी तरफ से और क्वेश्चन पूछें। जी, एनीवन एल्स फॉर द क्वेश्चन? मैम नहीं कोई और तो, एक और ने हैंड रेज किया है। सजाद अली, आपका माइक ऑन है। जी जी, सजाद अली साहब आप पूछें, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम शायद बाय मिस्टेक हैंड रेज हुआ है क्योंकि कोई और हाँ, तो बोल नहीं हो रहा। सकता है। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद अहमद ने हैंड रेज किया है। डॉक्टर मोहम्मद अहमद, आपका माइक ऑन है। सजाद अली और हाफिज इरशाद, आप कह रहे हैं माइक नॉट वर्किंग। मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, फिर आपने अपने माइक वाले सेक्शन पे जाके वहां से खुद को अनम्यूट करना है। मेरा ख्याल है शायद अनम्यूट करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा लोगों को। मैम मैंने तो इनको अलाउ कर दिया है, अब आगे इन्होंने अपनी अच्छा, साइड से भी अनम्यूट करना है। सही है, थोड़ा गाइड कर दीजिए ना या कि अनम्यूट। आपका जो ऊपर सेक्शन आ रहा होता है माइक और कैमरे के साथ, वहां माइक पे चेक करें कि आप लोगों ने कहीं अपने आप को अनम्यूट तो नहीं किया हुआ, म्यूट तो नहीं किया हुआ कहीं। या फिर आप लोग चैट में लिख के क्वेश्चन पूछ लें अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है।
हाफिज, अरशाद इकबाल और साजिद अली, आप लोग चैट में क्वेश्चन कर लें। चैट हमारा मैम, सजाद अली पूछ रहे हैं कि जी मॉडर्न जी एजुकेशन में विच मेथोडोलॉजी इज बेटर। उन्होंने ये क्वेश्चन लिखा है। जी जी सजाद अली साहब, मॉडर्न एजुकेशन जैसे हमने इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजीज की बात की है, ऑब्वियसली सबसे आसान तो पेडागोजी ही है, लेकिन वी कैन यूज द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दीज 3 स्ट्रेटजीज। कुछ टॉपिक्स जो हैं नॉलेज ट्रांसमिशन से ही रिलेटेड होते हैं, उसमें पेडागोजी से आप काम लें। उसके बाद आप स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग और रिफ्लेक्शन पर भी ग्रेजुअली आए। ये हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम हर टॉपिक में ही रिफ्लेक्शन या एक्टिविटी करवाएं या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग करवाएं, लेकिन ये मुमकिन है कि हम लोग इसमें कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश निकाल सकते हैं। सो ऑब्वियसली बिहेवियरिस्ट थ्योरी जो है वो पेडागोजी को सपोर्ट करती है। तो हमारी स्कूल्स में बहुत सारी चीजें, जैसे मैथ्स की ही मैंने बात की थी, एक्टिविटी की, लेकिन मैथ्स के टेबल्स जब याद कराने पड़ते हैं तो वो हमें थोड़ा सा बिहेवियरिस्ट तरीके से ही कराने पड़ते हैं, और कभी कभार हमें रिवॉर्ड पनिशमेंट से भी काम लेना पड़ता है। लेकिन हम दूसरी दोनों ही पेडागोजीज, एंड्रागोजी, ह्यूटागोजी सब पर काम ले सकते हैं। आई एग्री विद यू दैट इट्स टाइम टेकिंग, लेकिन वही बात है कि हर टॉपिक उसको ना, हर टॉपिक उसमें ना एक्टिविटी बेस्ड ना करें। जैसे थ्रू आउट द सेमेस्टर आप लोग हायर एजुकेशन में है, कभी एक बार कोई असाइनमेंट, कोई ऐसा काम, टास्क ऐसा दे दे जिसमें रिफ्लेक्शन और केस स्टडीज आए। ठीक है, आई होप मैम वो इट्स कह रहे हैं क्लियर। कि जी मैम वो जी सजाद जी अली कह रहे हैं कि आज की जो एजुकेशन है वो मोस्टली पेपरलेस है या जी डिजिटलाइज है, तो उस लिहाज से मॉडर्न एजुकेशन में कौन सी मेथोडोलॉजी बेहतर रहेगी। मॉडर्न एजुकेशन लेवल पर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर पढ़ा रहे हैं। अगर आप सेमेस्टर में, ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर में, तो आप फोकस करें उन पर प्रोजेक्ट बेस्ड और उनकी स्किल्स को की असेसमेंट पर। ठीक है, आई थिंक इट टाइम इज गोइंग टू बी ओवर, और तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू मैम। वेलकम। जिन लोगों को माइक का इश्यू हो रहा है, ऑडियो का इश्यू हो रहा है, वो काइंडली रिज्वाइन करें। आप लोगों ने जिन 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 ने भी हैंड रेज किए थे, मैंने उन सबका माइक बारी बारी अनम्यूट किया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के ऑडियो माइक सब कुछ ऑन है, उसके बावजूद कनेक्शन नहीं हो रहा, तो रीज्वाइन करके देखें, क्योंकि मेरे एंड पे प्रॉब्लम नहीं है।